Hello students, in today's video lecture we will discuss about CH bond activation. This topic is very important as far as the homogeneous catalysis is concerned. We know that there are many organic compounds which have CH bond. For example, hydrocarbons, alkanes, alkenes, alkynes and arenes. जहाँ तक बात करें अल्केन्स की, तो अल्केन्स में ये जो CH बॉन्ड है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और जो अल्कीन्स हैं उन अल्कीन्स में ये जो हाइड्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अल्काइंस के केस में यही जो बॉन्ड है CH बॉन्ड ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, और वी नो दैट ग्रेटर द s करेक्टर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो अल्काइंस में इस बॉन्ड को तोड़ना इट्स डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अल्कीन्स, ओके। और सबसे इजी है इस बॉन्ड को क्लीव करना इन केस ऑफ अल्केन्स, मींस sp3 hybridized carbon atom. So CH bond of any alkyl group can be cleaved, but it needs some catalyst, and there are many organometallic compounds, transition metal compounds, which act as efficient catalyst for the cleavage of this bond. Now why we need the cleavage of this bond? Because if we can activate or functionalize this CH bond, it will be very beneficial to synthesize a large number of organic compounds. So this is a very important topical problem of organometallic chemistry, means CH bond activation. So CH bond functionalization is a type of reaction in which carbon hydrogen bond is cleaved. As I told you earlier, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इट कैन बी फ्रॉम अल्केन्स और फ्रॉम एरीन्स। अल्कीन्स और अल्काइंस का जो CH बॉन्ड है उसको क्लीव करना मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का जो CH बॉन्ड है उसको क्लीव करना इट इज difficult because of more s character and electronegativity of carbon atoms. So in this topic we will discuss only about the CH bond activation, जिसमें जो CH bond है वो या तो ऐसे कार्बन एटम का है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम या फिर बेंजीन रिंग का है। बेंजीन रिंग के केस में जो CH bond activation है उसका मैकेनिज्म विल बी डिफरेंट टू दैट ऑफ जब ये कार्बन एटम अल्काइल कार्बन एटम हो। दोनों के केस में डिफरेंस है, that will be discussed in this topic. The term usually implies that a transition metal is involved in the CH bond activation. This is very important point. We need to cleave this CH bond, and for this we need some catalyst. And as I told you earlier, transition metal compounds or many organometallic compounds, they are used as efficient catalyst for this cleavage. This CH bond activation is also known as CH bond functionalization. Now there is big difference between CH bond activation and CH bond functionalization that will be dealt in the later slides. The first CH bond activation reaction is oftenly attributed to Otto Demotte, who in 1902 reported that benzene reacts with mercury to acetate. और जैसा हम जानते हैं कि बेंजीन के केस में क्या है, we have CH bonds. इस तरह से हमारे पास हर एक पोजीशन पे CH bonds प्रेजेंट है। तो इन CH bonds की एक्टिवेशन की थी और इस बेंजीन को ऑटो डेमरॉथ ने मर्क्यूरिक 2 एसीटेट के साथ रिएक्ट करवाया था। Many electrophilic metal centers undergo this Friedel-Crafts like a reaction. Now this is very important. We have studied the Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation reactions. उन reactions में हम अच्छी तरह से जानते हैं। For example, ये है मेरे पास बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं मिथाइल क्लोराइड के साथ in the presence of anhydrous AlCl3. So AlCl3 anhydrous, or we can use FeCl3. We will get the compound in which this CH bond is now cleaved, और इस CH में C के साथ अब हाइड्रोजन की जगह जुड़ेगा मिथाइल ग्रुप. So this bond is cleaved, and who is facilitating this cleavage? These Friedel-Crafts catalyst. और ये catalyst कौन से हैं? They are generally Lewis acids. Lewis acid substance कौन से होते हैं? Which are electrophilic in nature. That's why हम यहाँ पे कह रहे हैं कि many electrophilic metal centers undergo this Friedel-Crafts like a reaction. यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है ये Friedel-Crafts alkylation की है, ऐसे एग्जांपल होती है Friedel-Crafts acylation की. So this is another example in which, or very common example which you have studied in a very early classes in 10+1 or 10+2.
जिसमें ये CH बॉन्ड एक्टिवेट हो रहा है, यहां से ये H निकल रहा है और इसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में यहां पे असाइल ग्रुप जुड़ जाता है। सो दिस CH बॉन्ड इज क्लीव्ड। ओके, जोसेफ चैट ऑब्जर्व्ड द एडिशन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ नेफ्थलीन बाय रुथेनियम 0 complexes also. So naphthalene is similar to benzene. स्ट्रक्चर्स में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि बेंजीन में एक ही रिंग है, बट नेफ्थलीन में देयर आर 2 रिंग, 2 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। इसका जो CH बॉन्ड था वो ऑक्सीडेटिवली ऐड किया था रुथेनियम 0 कॉम्प्लेक्सेस में, किसने? जोसेफ चैट ने। Now in organometallic chemistry इसकी डेफिनेशन क्या है? So CH bond activation refers to the formation of complex wherein the CH bond interacts directly with metal catalyst or reagent. So let this is a metal जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +N। अगर ये रिएक्ट करता है CH ग्रुप से, we will get MC and H. So मेटल अल्काइल और मेटल अराइल कॉम्प्लेक्स, साथ में एक मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। इन एडिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2 यूनिट्स बढ़ जाएगी। सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, इस मेटल सेंटर के साथ जिसमें और भी लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके साथ क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्या जुड़ रहा है? दिस CH बॉन्ड इज अंडरगोइंग क्लीवेज और ऑक्सीडेटिव इसकी एडिशन यहाँ पे हो रही है। सो व्हाट वी आर गेटिंग मेटल कार्बन बॉन्ड, ठीक है, और साथ में मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोडक्ट में हमारे पास बन रहा है। The CH bond activation is frequently used as an organometallic term to describe certain metal mediated processes. बहुत सारी जो रिएक्शंस हमने स्टडी की हैं, दैट्स फॉर एग्जांपल अल्कीन हाइड्रोजिनेशन, अल्कीन आइसोमराइजेशन, उन सभी में भी CH बॉन्ड एक्टिवेशन हुई थी। फॉर एग्जांपल आपको ये याद होगा, मेटल था, मेटल के साथ यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन वगैरह हम ये रिएक्शंस स्टडी करते रहे हैं। तो ये कार्बन एटम जिसका मेटल जुड़ी है अल्फा, यहाँ पे बीटा है। सो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एटम था बीटा कार्बन के साथ, ये मेटल के साथ एगोस्टिक हाइड्रोजन इंटरेक्शन शो करता था और क्या बन जाता था हमारे पास? मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता था, साथ में यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती थी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द क्लीवेज ऑफ दिस CH बॉन्ड। ये भी एग्जाम्पल है CH बॉन्ड एक्टिवेशन की, जिसमें हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की बात कर रहे थे। सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस CH बॉन्ड एक्टिवेशन इज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। और किन रिएक्शंस में ये रिएक्शन वी हैव ऑब्जर्व्ड दिस रिएक्शन इन अल्कीन हाइड्रोजिनेशन एंड अल्कीन आइसोमेराइजेशन। सो इन रिएक्शंस में हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेशन एंड फंक्शनलाइजेशन? सो एक्टिवेशन इज सिंपली द क्लीवेज ऑफ दिस CH बॉन्ड। जो CH बॉन्ड है किसी भी अल्काइल या अराइल ग्रुप का जो है, वो बॉन्ड की क्लीवेज को हम, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये मेटल के सेंटर के साथ जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड CH बॉन्ड एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मींस हम इस बॉन्ड की एनर्जी बढ़ा रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं, बिकॉज जब एनर्जी ज्यादा होगी इसकी तो इसको तोड़ना बहुत ईजी होगा, मींस हम इसको अनस्टेबल कर रहे हैं। और जो CH बॉन्ड फंक्शनलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, जब ये बॉन्ड क्लीव कर दिया जाता है तो कार्बन के साथ कुछ और फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल मान लो मेटल के साथ इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पे हो गई, ओके। आफ्टर दैट एनी ग्रुप, एनी एक्स ग्रुप, ये क्या करेगा, ये मेटल कार्बन और कार्बन के साथ आगे ये ग्रुप अटैच हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली फंक्शनलाइजेशन। हमने कार्बन के साथ यहाँ पे एक नया ग्रुप जोड़ दिया, दिस इज रेफर टू एज CH बॉन्ड फंक्शनलाइजेशन, जिसमें कार्बन को हमने फंक्शनलाइज कर दिया, एक तरीके से हम H हटा रहे हैं और उसके यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे हैं। सो पहले ये था CH बॉन्ड, तो अब बन जाएगा ये CX बॉन्ड। सो दिस इज फंक्शनलाइजेशन एंड दिस इज CH बॉन्ड एक्टिवेशन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की सिंपल क्लीवेज हो रही है। नाउ देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म जिनसे CH बॉन्ड एक्टिवेशन हो सकती है। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू, मैं ये डिस्कस भी कर चुका हूं कि जैसे मान लो ये मेरे पास मेटल है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले अज्यूम इट इज 0, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मैंने ये RH ग्रुप है, इसको कोऑर्डिनेट कर देना है, तो Ln M और M के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप और ये H, और ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 2 यूनिट्स इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग एन ऑक्सीडेटिवली एडेड प्रोडक्ट, जिसमें CH बॉन्ड, यहाँ पे जो CH बॉन्ड है उसकी क्लीवेज हो रही है। नेक्स्ट जो है
The second one is electrophilic activation. As I told you earlier, electrophilic centers कौन से होंगे? Which are electron deficient. So you can see here metal is in its positive oxidation state. ठीक है, तो जब ये metal यहाँ पे positive oxidation state है, it will try to interact with the sigma bond of this carbon hydrogen bond. ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा करने के लिए what it will do, it will try to withdraw or try to form this sigma bond complex, and after that what we will get? Finally there will be addition of this alkyl substituent and hydrogen atom to the metal center. और in the last step what happens? metal क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑलरेडी, तो मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के भी खींच लेगी और यहाँ से H एज H पॉजिटिव रिलीज होगा. और ये एग्जांपल बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है, जो आपने पढ़ी हुई है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन के H बॉन्ड की ही फंक्शनलाइजेशन और क्लीवेज की बात करूं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस में हम स्टडी करते हैं, व्हाट हैपेंस? हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाता है और साथ में HCl रिलीज हो जाता है. तो दिस इज H पॉजिटिव जो यहाँ पर रिलीज हो रहा है. और यहाँ पे नो डाउट मेटल इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज, बट मेटल इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सिमिलर टू दिस M पॉजिटिव पार्ट. So these were the first two mechanisms. The third one is sigma bond metathesis. So in this case there is formation of a four membered transition state. For example this is the complex, ये complex है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया. इसके साथ क्या इंटरेक्ट करेगा? इसके साथ इंटरेक्ट करेगी R-H. So इस तरह से ये इंटरेक्शन शो करेगा. ये H R बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे और R-M के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा. मींस देयर इज साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन सिंगल स्टेप. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कंसर्टर टाइप रिएक्शन. सो फोर सेंटर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड. सो दिस बॉन्ड विल स्टार्ट फॉर्मिंग. ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड भी टूटना शुरू हो जाएगा और ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा. एंड इन द फाइनल स्टेज व्हाट वी विल गेट? LMMR ये बन जाएगा और साथ में RH बन जाएगा. मींस अगर आपके पास यहाँ पे मेटल के साथ पहले मिथाइल ग्रुप था और ये जो ग्रुप है ये इथेन से था, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें LNM इथाइल ग्रुप आ जाएगा और मीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी. ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप इस H के साथ मीथेन बनेगा और इथाइल ग्रुप मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा. सो दिस वर द थ्री मैकेनिज्म्स. द फोर्थ वन इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है इसमें हम टू स्टेजेस में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर एग्जांपल वी हैव दिस LNM प्लस N, ये RH के साथ रिएक्ट कर रहा है. दिस RH अंडरगोज होमोलिटिक क्लीवेज एंड विल फॉर्म R रेडिकल एंड H रेडिकल. ठीक है, सो इन फर्स्ट स्टेज ये जो M है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी H को, और H जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H रेडिकल बन जाएगा. ठीक है, दूसरे स्टेप में एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगी इस R रेडिकल को और ये R नेगेटिव बन जाएगा. नाउ इन दोनों के पास एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन का है. दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद मेटल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन दिस वे. और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये इनिशियल प्लस N थी तो ये हो जाएगी N+2. बाई 2 यूनिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज कर जाएगी. तो दिस इज वन मोर हाइपोथेसिस में ये कहा जा रहा है कि R और H बॉन्ड की क्लीवेज होगी होमोलिटिकली. द फिफ्थ स्टेप इज कंसर्टेड मैकेनिज्म. सो इन दिस वे व्हाट हैपेंस? वी नीड सम बेस. इन दिस केस हमें एक बेस चाहिए, ऐसा बेस जो क्या करे इस अल्काइल ग्रुप के साथ जो H जुड़ा हुआ है उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए और उसको H को H पॉजिटिव बनाने की कोशिश करे. मींस R नेगेटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा. ठीक है, तो ये H पॉजिटिव इस बेस इट कैन बी एज्यूम इट इज NH2. तो ये NH2 इस हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. इन दिस वे ये भी फोर मेंबर्ड एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनाएगा, इंटरेक्शंस होंगी. सो इफ दिस X इज NH2 वी विल गेट NH3. if this X is OH we will get water as by products. और ये जो R ग्रुप है ये R मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? वी आर क्लीविंग दिस RH बॉन्ड. RH बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है इन दिस केस. और कौन मीडिएट कर रहा है इसको? अगेन यहाँ पे भी जो मेटल सेंटर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट उस डेफिशिएंट सेंटर के साथ वी हैव वन सच लिगेंड व्हिच इज एक्टिंग एज बेस. मींस मेटल शुड हैव अ कोऑर्डिनेटेड बेस अटैच्ड टू द metal which promotes the removal of hydrogen H as H positive. Which promotes the removal of hydrogen as H positive. Now there is one big issue. हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेटिव एडिशन भी
बहुत सारे ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स में कर चुके हैं, बट जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेटिव एडिशन है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ CH बॉन्ड्स। और उसका रीजन क्या है? सो सी हियर आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन दिस वे। सो वी हैव दिस कॉम्प्लेक्स जिसमें फर्स्ट केस में हमारे पास HH बॉन्ड है और दूसरे केस में CH बॉन्ड है जो कोऑर्डिनेट करेंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा LMH होगा, यहाँ पे H होगा, बट इस केस में जो डेल्टा H है वो है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड इज फेवरेबल। सो ये इजीली हो जाएगा, बट जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बारी आती है तो इस केस में जो मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, बट इस केस में जो डेल्टा H है वो है पॉजिटिव, मींस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सो ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड CH bond into metallic compounds. Okay, so it is very easy to oxidatively add or cleave this hydrogen bond as compared to the cleavage of this carbon hydrogen bond. Now there are two types of CH bond activations. The first one is intermolecular CH bond activation and the second one is intramolecular CH bond एक्टिवेशन। सो इन दोनों को हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर कौन सी है और इंट्रामॉलिक्यूलर कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर ऑक्सीडेटिव एडिशन की। सो इंटरमॉलिक्यूलर CH बॉन्ड एक्टिवेशन में होता क्या है, जो कम्प्लेक्स है मेरे पास ये है, ये रिएक्ट करेगा किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जो हाइड्रोकार्बन हम बाहर से ऐड कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली वी विल गेट LNM R and H। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ CH बॉन्ड एक्टिवेशन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर CH बॉन्ड एक्टिवेशन, जिसमें कम्प्लेक्स रिएक्ट कर रहा है किसी हाइड्रोकार्बन के साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। सो दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड, इसमें हर एक पोजीशन के ऊपर यहाँ पे मिथाइल सब्सटेंट्स लगे हुए हैं। ईटा 5 है ये, इसके साथ है ये इरिडियम, इरिडियम के साथ वी हैव 1 hydrogen here, 1 hydrogen at this position and 1 trimethyl phosphine ligand. Okay, so when it reacts with neopentane, now what is neopentane? Neopentane is this group, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3. So in this case what we will get? This is cyclopentadienyl, मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, हर जगह पे एक एक मिथाइल सब्सटेंट यहाँ पे लगा हुआ है। वी हैव इरिडियम, इरिडियम के साथ यहाँ पे आ जाएगा H और H के साथ आगे क्या कोऑर्डिनेट करेगा? वी हैव CH2C और ये 3 मिथाइल ग्रुप, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको क्या देते हैं, और ये पूरा नियोपेंटाइल ग्रुप। और यहाँ से लॉस किसकी होगी है? देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे -H2 हो जाएगा। सो ये H2 कैसे हुआ? एक H आया इस ग्रुप का, जो आपके पास ये कंपाउंड था इसका CH2H, एक H ये पहले इसके मेटल के साथ यहाँ पे हुई ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर ये 2 H यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एज H2 और ये कार्बन एटम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर जाएगा। सो इन दिस वे वी विल हैव दिस नियोपेंटाइल कंपाउंड अटैच्ड, नियोपेंटाइल ग्रुप अटैच्ड टू दिस इरिडियम कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ नियोपेंटाइल या नियोपेंटेन आप कह सकते हैं, एंड देन देयर वाज रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ H2. So reductive elimination we will get this final product. This was the one example. There is one more example. We have again a complex of iridium, और इरिडियम के साथ है यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप्स, देयर आर 2 CO ग्रुप्स। जब ये रिएक्ट करेगा विद C6F12. Now what is this C6F12? This is fluorosubstituted cyclohexane. In the presence of light और मीथेन what we will get? -CO, एक कार्बन मोनोक्साइड लिगेंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड what we will get? We will get इरिडियम, यहाँ पे H आ गया, एक H कौन सा? मिथाइल ग्रुप का एक H यहाँ पे आ गया, एक मिथाइल इसके साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा, दिस इज मिथाइल ग्रुप, और एक CO ग्रुप जो पहले ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक CO रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे
दो और पोजीशंस ऑक्यूपाई हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप, उसको जो जहां कहां से आएगा, मीथेन से, और इस रिएक्शन में वी नीड 10 बार ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस वाज द सेकंड एग्जांपल. इन थर्ड केस वी हैव दिस इथीन फॉस्फेन, जिसमें दो साइक्लोहेक्साइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और ये कंपाउंड बना रहा है प्लेटिनम के साथ. प्लेटिनम के साथ है, एक तरफ को H और एक तरफ को है ग्रुप जो अभी हमने पीछे पढ़ा, इट इज नियो पेंटाइल ग्रुप. दिस इज नियो पेंटाइल ग्रुप. एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहां से नियो पेंटेन रिमूव हो जाता है, मीन्स देयर इज लॉस ऑफ दिस नियो पेंटेन. नियो पेंटेन रिमूव हो जाएगा और इसमें एडिशन किसकी करेंगे, वी विल ऐड साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव. तो ये डेरिवेटिव अटैच हो जाएगा और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा P देन वी हैव प्लेटिनम और फाइनली एक H यहाँ पे होगा और एक ग्रुप जो हम मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं वो वाला. इस तरह से इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी. तो ये जो CH बॉन्ड था, दिस CH बॉन्ड इज एक्टिवेटेड. सो ये थे इंटरमॉलिक्यूलर CH बॉन्ड एक्टिवेशन, जिसमें जो हम रिएजेंट बाहर से ऐड कर रहे हैं उस रिएजेंट का, वो रिएजेंट क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन और एरियंस हो सकते हैं, उसका CH बॉन्ड एक्टिवेट हो रहा है. जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर CH बॉन्ड एक्टिवेशन. सो इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में वन टॉपिक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्थोमेटालेशन और साइक्लोमेटालेशन. वी हैव स्टडीड ऑर्थोमेटालेशन और साइक्लोमेटालेशन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्थोमेटालेशन. दिस इज IR, वी हैव Cl, देन यहां पे हमारे पास 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. ठीक है, इसमें क्या होगा, वन ऑफ द, ये 16 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, इरिडियम कंपाउंड है, इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 है. सो इरिडियम के साथ यहाँ पे एक Cl है. यहाँ पे जो 3 फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट्स उनमें से एक ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पे शो करता है विद इरिडियम. सो यहाँ पे H होगा, इस H के साथ ये इरिडियम एगोस्टिक हाइड्रोजन इंटरेक्शन शो करेगा और आफ्टर दैट ये कंपाउंड यहाँ पे ऑक्सीडेटिवली ऐड हो जाएगा. एंड व्हाट वी विल गेट अ 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे Cl है, यहाँ पे PPH2 है, यहाँ पे हमारे पास इसके साथ एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है इन दिस वे. ओके, एक H आ गया जो इस पोजीशन से निकला था, बेंजीन का CH बॉन्ड था वो क्लीव हो गया, वो एक्टिवेट हो गया. बाकी के जो सब्स्टिट्यूएंट्स वो एज इट इज यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रही है बट वी आर नॉट एडिंग एनी रिएजेंट. जिसका CH बॉन्ड एक्टिवेट करना है वो ग्रुप में ही प्रेजेंट है, उसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसी का हम CH बॉन्ड एक्टिवेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ये है, जैसे मान लो ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसके पास एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है. So this is methyl substituent. So this carbon atom is alpha carbon atom. This is beta carbon atom. So beta carbon atom के हाइड्रोजन के साथ ये मेटल एगोस्टिक हाइड्रोजन इंटरेक्शन शो करेगी, provided this metal is electron deficient, means it should not have more than 16 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे भी एगोस्टिक हाइड्रोजन इंटरेक्शन आएंगी. आफ्टर दैट मेटल के साथ फाइनली एक H बन जाएगा और एक हमारे पास यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और ये इस तरह से मेटालोसाइकल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है. सो मेटालोसाइक्लो कंपाउंड्स बन जाते हैं. जो ऊपर हमने केस पढ़ा है दैट इज रेफर टू एज ऑर्थोमेटालेशन. उसका रीजन क्या है, जो मेटल यहाँ कोऑर्डिनेट कर रही है, इरिडियम जो कोऑर्डिनेट कर रही है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग एट ऑर्थो पोजीशन जहां पे ये फास्फोरस एटम जुड़ा हुआ था. दैट्स व्हाई इट इज रेफर टू एज ऑर्थोमेटालेशन. सो दिस वर द 2 टाइप्स ऑफ CH बॉन्ड एक्टिवेशन प्रोसेसेस. सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस टॉपिक, CH बॉन्ड एक्टिवेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं मेन, इसके 5 हमने इसके मैकेनिज्म पढ़े और इसकी 2 टाइप्स हमने स्टडी किए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर. यू कैन ऐड मोर एग्जांपल्स इन केस ऑफ इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर CH बॉन्ड एक्टिवेशन. दिस इज फॉर यू, यू हैव टू ऐड मोर एग्जांपल्स इन केस ऑफ इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर CH बॉन्ड एक्टिवेशन.
So that's all for today's topic. Okay, thank you.